آئیں اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہم اپنا خدا کی حضوری میں رکھ لیں۔ وہ خدا ہے جس کی آنکھیں اپنی کلیسیا پر لگی ہوئی، وہ خدا ہے جس کا کان کلیسیا کی دعاؤں کے اوپر لگا ہوا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس موقع کے لیے۔ خدا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں کہ یہ مقدس دن، فتح مند دل تو نے ہمیں بخشا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں مہربان، شکر گزاری کرنے آئے ہیں۔ خدا تیرا کلام سننے آئے ہیں۔ خدا جو تو نے نبیوں اور رسولوں کی معرفت کلام ہم سے کیا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ پھر تو نے بیٹے کی معرفت ہم کلام ہوا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا ہم بہت گناہ آلودہ تھے، ہمارے اندر غرور گھمنڈ تھا، حسد بغض تھا، کینہ تھا، لالچ تھا، بد چلی بدکاری اور برے خیالات تھے۔ یہ تو تیرا شکر کرتا ہوں خدا کہ تو نے اپنے کلام کو بھیجا ہے۔ وہ کلام خدا جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، وہ ہمیں اندھیرے اور تاریکی سے نکالتا ہے، وہ گناہ کی دلدل سے نکالتا ہے اور ہمیں برگزیدہ بنا کر، شاہی خانوں کا فرقہ بنا کر، دھو کر، پاک اور پوتر کر کے ہمیں خدا تو ہمیں اپنی بادشاہی میں لے جاتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم اس لائق نہ تھے جس لائق تو نے بنایا ہے۔ خدا تو آج اپنے بندہ کو، اے خدا ان کے ہونٹوں کا، زبان کا، دل دماغ، سوچ اور خیالوں کا زبان لے لینا۔ جیسے خدا جب سے تو نے اپنے بندہ کو چنا ہے، سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک حفاظ نگہبانی کی ہے، ہر تباہی ہر وبا سے بچایا ہے۔ التجا ہے روح پاک خدا تیرے بندہ کو تیرے پر کے نیچے، کھم کے نیچے، امر کے نیچے، فضل کے نیچے، رحمت کے نیچے، زوراور بازو کے نیچے، روح القدس کی بازو میں لے لینا اور اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، تاکہ آج کی روٹی، آج کا کلام، آج کا پانی، زندگی کا پانی ہمیں دھو دے، پاک اور پوتر کر دے، زندگی کی روٹی کھا لے، ہمیشہ کی بادشاہی کے اندر جا سکے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، سارا جلال، ساری عزت آپ کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو ہمیشہ ملتا رہے۔ آج پوری دنیا کے اندر خدا تو سب سے اپنے خالقوں کے ذریعے ہم کلام ہونے کو ہے، آپ کے شعلوں کی مانند استعمال کر ساری کلیسیا کو بڑی برکت دینا، ساز بجانے والوں، پرزائڈنگ کرنے والوں، دعائیں اٹھانے والوں اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف، سارا جلال، ساری عزت تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کو ہمیشہ ملتا رہے، اور سب کچھ مانگ لیا یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویہ۔ پریسٹیج کے پورشن میں ہمارے خدا نے ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم زندہ آواز کو سنیں، تو زوردار تالیوں سے خداوند کے زندہ کلام کو، خدا کے خادم پاسٹر عمران مقبول کو ویلکم کریں گے۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔
یہ اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم پھر اس کے قدموں میں جھکے۔ مجھے یقین ہے کہ جو پیغامات میں نے پچھلے دنوں میں دیے ہیں وہ یقیناً آپ کی زندگی کو برکت دینے کے لیے کافی تھے۔ آمین۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے دو آپ کے درمیان میں چیزیں رکھی تھیں، دو پیغامات، لوز تھائی سیلف، اپنے آپ کو آزاد کرو خود، اور ہماری سیریز کا ٹائٹل تھا دا بریکر انوائنٹنگ، توڑنے والے کا مسا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بریکر کو سمجھا، توڑنے والے کو۔ میکا 2:13 میں لکھا ہے کہ توڑنے والا ان کے آگے گیا، وہ توڑتے ہوئے پھاٹک میں داخل ہوئے اور اس میں سے گزر گئے۔ تو گویا توڑنے والا کون ہے؟ ہمارا خدا یسوع مسیح، جو بندھنوں اور جوؤں کو توڑ دیتا ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ ہم کن کن چیزوں کے اپنی زندگی سے توڑ سکتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ اپنے آپ کو کن کن چیزوں سے ہمیں آزاد کرنا ہے۔ میں نے بتایا ماضی سے اپنے آپ کو آزاد کریں، جو بے دین تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہیں ان سے آزاد ہوں، اور وہ جو جادوگری، پیری فقیری اور غیبی چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں ہیں جو زندگیوں کو پکڑتی ہیں، ان کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ فیئر سے، ڈر سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ کل پچھلی دفعہ بتا رہا تھا مائنڈ کنٹرول سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ کانشس کو کنٹرول کر لیتا ہے ابلیس کی قوت ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ ریجیکشن زندگیوں کے اندر آ جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ نا معاف کرنے والی جو اسپرٹ ہے وہ جو زندگیوں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، تلخی، ان کو اپنی زندگیوں سے آزاد کریں۔ اور جب یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں ہوں گی تو پھر ہم ٹھیک طور پر خداوند میں کامیاب مسیحی زندگی بسر کر پائیں گے۔ اور لوگ مختلف بری اسپرٹس کا شکار ہیں اور نہیں جانتے کہ ابلیس ان کی زندگیوں کے اندر کام کر رہا ہے اور ان کو مشکل کے اندر ڈالے ہوئے ہے، اور وہ ساری زندگی اسی حالت میں رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پاتے ہیں۔ جبکہ بائبل کہتی ہے کہ جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہم کر سکتے ہیں، ہم توڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بریکر ہمارے آگے ہے۔ ہم کھول سکتے ہیں کیونکہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ آمین۔ ہم باندھ سکتے ہیں کیونکہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ آمین۔ اب میں آپ کو ایک اور ڈائریکشن کے اندر لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور اگر ہم اس کی، یہ پریکٹس کے اوپر ہے، یہ آپ کی ایکسرسائز کے اوپر ہے، اور ایماندار کو اپنی زندگی میں، مسیحی زندگی میں یہ پریکٹس کرنا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے۔ جس طور پر ہم جسمانی طور پر اپنے بدن کو جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں، ضرور ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی قائم دائم رہیں، متوازن رہیں، اور اس کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ آمین۔ ہمارے درمیان میں بھائی بیٹھے ہیں، وہ ایکسرسائز کرواتے ہیں، انسٹرکٹر ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طور پر یہ جسمانی ضرورت ہے انسٹرکشن کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی انسٹرکشنز کی ضرورت ہے۔ اور اب میں آپ کو جس طرف لے کر جاؤں گا وہ یہ ہے، پریئرز ایکٹیویٹ یور بلیسنگز۔ ٹھیک ہے، جس کے اوپر جو ہے آج سے میں سرمنز آپ کے لیے کروں گا کہ دعائیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، ہماری برکات کو متحرک کرتی ہیں۔
मैं उन बिब्लिकल जो प्रेयर्स हैं और उसको हम बोलेंगे ताकि क्या हो सके, हमारी बरकतें एक्टिवेट हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मैंने मोबाइल में चार्ज कराना है तो मैं 100, 200, 500 का क्या करूँगा, कार्ड लेकर आता हूँ और मैं कार्ड अपने पास रख लेता हूँ। और मैं यूँ कहूँ कि मेरे पास मोबाइल कार्ड है और मेरे पास बैलेंस भी है, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे पास बैलेंस है, लेकिन ये उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसे जो है एक्टिवेट नहीं करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, आप सिम ली, ठीक है, और सिम अपने मोबाइल में डाल ली, और ये उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक कि वो क्या है, एक्टिवेट ना हो। और एक्टिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास खुदा की बरकतें मौजूद हैं, ये बरकतें हमारे पास हैं, उसके वादे हमारे पास हैं, लेकिन ये एक्टिवेट होते हैं, इनको एक्टिवेट किया जाता है, इनको मुतहरक किया जाता है। और जब तक ये मुतहरक ना हो, ये हमारी जिंदगियों के अंदर काम नहीं कर सकती हैं। आमीन। लिहाजा हम अपनी जिंदगियों के अंदर इनको एक्टिवेट करेंगे। आमीन। सो प्रेयर्स एक्टिवेट योर ब्लेसिंग्स, ये हमारी जो है हमारा सब्जेक्ट अब आज के बाद होगा। और इसमें मैं खुदा ने चाहा तो आपको इस जगह के ऊपर करूँगा कि किस तौर पर आप अपनी बरकतों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले सकेंगे। आमीन। खुदा का शुक्र करता हूँ भाई सैमुअल के लिए, जिन्हें खूबसूरत गीत गाया। आज़ाद कश्मीर में आर्मी में हैं, वहाँ पर खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, और ये खुशी की बात है कि आर्मी में रहकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड वेलकम। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में खुदा की मुहाफ़ज़त और क़ुव्वत और खुदा के फजल अपने लिए या अपने अजीज़ों के लिए इन बातों का तजर्बा करना है, तो फिर ज़रूर है कि हम सही मायनों में उसकी बरकत और खुशहाली को समझें। सही मायनों में हम क्या करें, उसकी बरकत को और उस खुशहाली को समझें। और जब तक हम उसकी ब्लेसिंग और उसकी प्रॉस्पेरिटी को, उसकी खुशहाली को नहीं समझ पाते, तो हम ठीक तौर पर जो है उसकी बरकतों को एंजॉय नहीं कर सकते, उसकी मुहाफ़ज़त, उसकी पावर और उसकी ग्रेस या उसकी फेवर को अपनी ज़िंदगियों के अंदर या अपने अजीज़ों की ज़िंदगियों के अंदर नहीं ले सकते हैं। आमीन। हर एक शख्स ये चाहता है कि उसको मुहाफ़ज़त मिले, उसे क़ुव्वत मिले, उस पर खुदा का फजल हो, ना सिर्फ वो एंजॉय करें बल्कि उनके आस पास और उनके प्यारे, उनके अजीज़ भी इन चीज़ों से क्या करें, वो एंजॉय करें। लेकिन ज़रूर है कि हम उसकी बरकतों और उसकी खुशहाली, उसकी प्रॉस्पेरिटी को अपनी ज़िंदगी में बड़े ज़ोरदार तरीके के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझें। आमीन। याद रखिए कि इस दुनिया के अंदर, कलीसियाओं के अंदर बरकत और खुशहाली का जो सब्जेक्ट है बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, बड़ा मुतनाज़े है, ठीक है, क्योंकि कई जगहों के ऊपर जो है खुशहाली को रुपए पैसे के साथ जो है वो जोड़ तोड़ किया जाता है। और कहीं ये कहा जाता है कि यीशु मसीह का तलक रुपए पैसे के साथ नहीं है, खुशहाली के साथ नहीं है, ठीक है। और कई ऐसे लोग हैं जो बरकत पाना चाहते हैं और बाबरकत होना चाहते हैं, और मसीह के मरने और जी उठने की कुदरत में भी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, उसमें ज़िंदगी के अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन क्या है, बगैर खुदा की कुर्बत के, ठीक है, बगैर खुदा की कुर्बत के वो क्या करना चाहते हैं, वो जो है खुशहाली और खुदा की बरकत को एंजॉय करना चाहते हैं, और जो है मसीह के अंदर भी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा वो खुदा को जो है खुदा जो कुछ वो कर रहे हैं खुदावन के लिए, वो समझते हैं कि ये जो है एक लॉटरी है, या स्लॉट मशीन आपने सुनी हो, उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं और उसके अगेंस्ट या कुछ ना कुछ हमें मिलता है। और हमने खुदा को क्या समझा हुआ है, या आसमान को क्या समझा हुआ है कि ये स्लॉट मशीन है या हमारी लॉटरी निकलने वाली है। हम क्या करते हैं इसके लिए, जब हम ख़ास तादाद में दुआएं डालते हैं, ख़ास जो है वो इत्तेदाद में हमद सना और परस्तिश
اور ایمان اور یہ اچھے کام اور اس معنوں میں کہ جب یہ ہم اتنا کچھ کر چکیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ برکت ہمیں ملے گی. ہم نے یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ آج میں اتنی دعائیں کروں گا، میں اتنی پرستش کروں گا، میں اتنی حمد و ثنا کروں گا، اور میں نے تو آج سارا دن ایسا ہی کیا ہے تو یقیناً برکت مجھے کیا برکت اور خوشحالی ضرور ہی ملے گی. یقیناً ایسی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ جو ہے وہ خدا سے پرے ہٹ جاتے ہیں. لوگ خداوند سے جو ہے وہ دور ہونا چاہتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اور وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں، لو جی ہم تو سارا جو ہے بڑی دعائیں کرتے ہیں، ہم تو بڑے چرچ جاتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ بڑی پرستش کرتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں، سارا دن گنگناتے رہتے ہیں، لیکن الٹا ہمیں تو کچھ جو ہے وہ برکت نہیں ملتی ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، برکت اور خوشحالی بلیسنگ اینڈ پراسپیرٹی یہ روپے پیسے سے کہیں زیادہ ہے. آمین. مور دین منی. آمین. برکت اور خوشحالی کیا ہے؟ یہ پیسے سے کہیں زیادہ ہے. پراسپیرٹی جو ہے بائبل اس کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسٹرانگ کمپلیٹ کنکارڈنس آف بائبل کے مطابق، یعنی یہ ڈکشنری ہے اسٹرانگ کمپلیٹ کنکارڈنس آف دا بائبل، اس میں جو ہیبریو جو ہے ورڈ جو ہے جو پراسپیرٹی کے لیے، خوشحالی کے لیے وہ استعمال ہوا ہے وہ ہے شلوم. آپ نے شلوم کا ورڈ سنا ہے؟ خوشحالی کو شلوم کے ساتھ جو ہے اس کا معنی شلوم ہے، جس کو عام ہم معنوں میں یا امن، اطمینان، تسلی اور صلح کے معنوں میں لیتے ہیں. آمین. اور جو ڈکشنری اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو ہے پراسپیرٹی، خوشحالی کا مطلب کیا ہے، وہ اس کے معنی کیا دیتی ہے؟ کمپلیٹنس. کیا بیان کرتی ہے؟ بولیے. کاملیت، پرفیکٹ کمپلیٹنس. اور پھر ساؤنڈنس، پائیداری ہے، مضبوطی. ساؤنڈ ہے، کہتے ہیں یہ بڑا ساؤنڈ شخص ہے، بڑا مضبوط ہے. ساؤنڈنس. تو گویا جب آپ خوشحالی کی بات کرتے ہیں، پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کمپلیٹنس اس کا مطلب ہے، یعنی مکمل، یعنی کامل، یعنی پرفیکٹ. آمین. اور پھر جب ہم خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ ساؤنڈنس، مضبوط اور پائیدار. اگر کوئی شخص جب خوشحال ہے تو پھر ہم اسے کن معنوں میں لیں گے کہ یہ شخص کمپلیٹنس میں ہے، یہ شخص ساؤنڈ، اس کے اندر ساؤنڈنس ہے. اگر کوئی شخص جو ہے اچھا کھاتا پیتا اور رہتا سہتا ہے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اگر وہ ساؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے یہ کہیں گے وہ خوشحال نہیں ہے. بائبل کے مطابق یا اس معنوں میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ وہ خوشحال نہیں ہے. پراسپیرٹی کا مطلب ویلفیئر کے معنوں کے اندر بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، فلاح کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور پھر اس کا مطلب ہے پیس. اور پیس یا کمپلیٹ پیس، وہ پیس جو خداوند یسوع مسیح نے دیا، جو اس نے صلیب پر اپنی جان صلیب پر قربان کر کر اپنا خون بہا کر اس ہمیشہ کی جنگ کو جو ہے وہ جاری اور ساری تھی، جو ابلیس نے چھیڑی ہوئی تھی، یسوع مسیح نے صلیب پر اس کا خاتمہ کر دیا اور کمپلیٹ پیس کا اعلان کر دیا. آمین. اور اس نے کیا کی؟ جو ہے خدا اور انسان کے درمیان میں کیا کی ہے؟ وہ صلح کرا دی ہے. اس کو کیونکہ اس سے مراد صلح بھی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ جو جدائی کی دیوار تھی اس نے اپنی موت کے وسیلے سے اسے کیا کر دیا؟ توڑ کر، ختم کر کر، گرا کر اس نے ہماری صلح باپ کے ساتھ کرا دی ہے. ہم جو ہے وہ دل سے خدا کے دشمن تھے، لیکن باوجود جو ہے دل سے خدا کے دشمن تھے، لیکن اس کی موت کے وسیلے سے، خون بہانے کے وسیلے سے کیا ہوا؟ ہمارا بے میل باپ کے ساتھ ہو گیا ہے. تو یہ کرائسٹ نے جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ امن، کمپلیٹ پیس جو ہے وہ بخشا ہے. اس کو کہتے ہیں پراسپیرٹی. آمین. اسے کیا بولتے ہیں؟
प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। लिहाजा अगर कोई शख्स जो है इन चीजों को समझेगा तो उसके अंदर से ये फतूर जो पैदा हुआ है दुनिया का, जिसकी लज्जत या जिसकी जो है वो अट्रैक्शन उन लोगों जिंदगियों को खींची जा रही है। आई एम नॉट अ प्रॉस्पर पर्सन, या मैं जो प्रॉस्पर नहीं हूं, तो मैं इनको किन मायनों में लूं? मैं कंप्लीट में, मेरे अंदर कंप्लीटनेस है, मैं साउंडनेस अपने अंदर रखता हूं, या मैं वेलफेयर रखता हूं, या मैं पीस रखता हूं। अगर मेरी जिंदगी में अमन है, फलाह है, या पायदारी है, या मेरी जिंदगी के अंदर कामलियत का काम है, तो इसका मतलब है कि मैं खुशहाल शख्स हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लिहाजा इसका मतलब यह है कि ये जो है प्रॉस्पेरिटी जो है वो क्या पेश करती है? ये कामलियत को पेश करती है, प्रोटेक्शन को, मुहाफ़ज़त को पेश करती है। ये जो है मजबूती को जो है वो हमारी जिंदगियों में पेश करती है। ये हमारी हेल्थ को, जो हमारे बदनों के अंदर जो हमारी हेल्थ है, इसको भी पेश करती है। अगर कोई शख्स जो है वो हेल्थ के अंदर है तो इसका मतलब है वो प्रॉस्पर जो है वो फिजिकली तरफ प्रॉस्पर शख्स है। आमीन। खुदा के ख्यालात जो हमारे इत्मीनान या अमन, सलामती, सुलह, मुहाफ़ज़त के तलक से है, वो हमारी सोचों से कई ज्यादा बड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचते हैं इतना अमन हो, या इतनी मुहाफ़ज़त हो, या हीलिंग हो मेरी जिंदगी के अंदर, वो हमारी जिंदगियों में जो है हमारी सोचों, हमारे ख्यालों, हमारे इरादों से कई ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप खुश हो रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है? याद रखिए, उसकी ख्वाहिश है कि हम बाबरकत हों और खुशहाली हासिल करें। उसकी ख्वाहिश है कि हम क्या हों? बाबरकत हों और खुशहाली हासिल करें। वो चाहता है कि हम अपनी फेवर या अपना फजल हमें दे और अपनी हिफाजत से हमें घेरे रखे। ये उसकी ख्वाहिश है, ये उसकी तमन्ना है। आमीन। तो गोया इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि कोई शख्स उसकी फेवर हासिल करे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का तल्लुक जो है ये ग्रेस के साथ है। प्रॉस्पेरिटी का तल्लुक जो है वो फेवर के साथ भी है। आमीन। और फेवर का मतलब हम आम तौर पर जब ग्रेस का वर्ड इस्तेमाल होता है, फजल का इस्तेमाल होता है, हम फेवर को हमायत के मायनों में इस्तेमाल करते हैं। और फेवर का मतलब जो है वो ग्रेस भी है। लिहाजा जब हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, तो गोया हम जो है फेवर की बात करेंगे, हम हमायत की बात करेंगे, हम ग्रेस की बात करेंगे, हम फजल की बात करेंगे। आमीन। तो यूं मैं कहूंगा कि अगर कोई शख्स प्रॉस्पर है तो मैं यूं कहूंगा उसको कि उसके ऊपर खुदा का फजल है। आमीन। या हम ये कहूंगा कि उसको जो है खुदा की फेवर हासिल है। आमीन। तो गोया आप जो है फेवर से हम क्या मुराद लेते हैं? जिसमें खुशी है, जिसमें शादमानी है, जिसमें जो है वो लुत्फ है, जिसमें मिठास है, जिसमें दिलकशी है, और जिसमें जो है मोहब्बत है, नेकी है, फलाह है, कसरत है और अजर है। दैट इज कॉल्ड जो है ग्रेस एंड फेवर। आमीन। अगर हमारी जिंदगी के अंदर खुशी, शादमानी, लुत्फ, मिठास, दिलकशी, मोहब्बत, फलाह, नेकी, कसरत और अजर हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाता है और ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि इसको फेवर हासिल है, इसे ग्रेस हासिल है, इसे फजल हासिल है, इसे हमायत हासिल है। आमीन। चुनांचे ये जो मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बरकत का और प्रॉस्पेरिटी का, इसके बाद जो है बाकायदा जो है आइंदा आने वाले सरमन्स में बताऊंगा कि किन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से आप इस्तेमाल करना है ताकि क्या हो सके, खुदा की बरकतें आपकी ज़िंदगी के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएं, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मुतहरक हो जाएं। आमीन।
तो जैसे मैंने बताया है कि जो फेवर और ग्रेस भी इब्रानी ज़बानों में इसका या तर्जमा जो है वो खुशहाली का जो मतलब है वो ग्रेस और जो है वो फेवर के मायनों में आता है। और याद रखिए, हमायत खुदा का फजल जो है ये खुदा की नेक मर्जी है जो किसी जिंदगी के अंदर जो है वो पैदा करता है, उसको अंदर जो है वो रिलीज करता है। ये क्या है? ये खुदा की गुड विल है जो जिंदगियों के अंदर वो क्या करता है, वो रिलीज करता है कि ये फेवर या ये ग्रेस या मेरी ये गुड विल है। तो गोया जब आप हमायत की बात करते हैं, फजल की बात करते हैं या इसको या खुशहाली की बात करेंगे तो इससे मुराद क्या है? ये खुदा की नेक मर्जी है, ये खुदा की या गुड विल है, ये खुदा की काइंडनेस है, ये खुदा की मेहरबानी है, या फिर यूं कह लीजिए ये खुदा का एहसान है जो उसके मोहब्बत रखने वालों को हासिल होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चुनांचे अगर हम अपनी जिंदगी में उसके एहसान को, उसकी मेहरबानी को, उसकी नेक मर्जी को अपनी जिंदगी के अंदर रखना चाहते हैं तो फिर हमें यह खुशहाली की जरूरत है, हमें उसकी हमायत की जरूरत है, हमें ग्रेस की जरूरत है। और ये उन सब को हासिल होता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें, इस हमायत में, इस ग्रेस में, इस जो है फजल में अजीम बरकतें, जिसमें जो है वो खुशहाली है, सेहत है, आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मौके हैं, बड़े बड़े जो है अपॉर्चुनिटीज जो है वो वकू में आती हैं और आपकी जिंदगी में जो है वो तरक्की जो है वो होना शुरू होती है। तो हम यूं कहेंगे कि ये शख्स जो है ये इसके ऊपर खुदा की जो है वो मेहरबानी है, इस पर खुदा का एहसान है और इसको खुशहाली हासिल है, इसको प्रॉस्पेरिटी हासिल है, इसको गुडविल हासिल है खुदा की। आमीन। गोया हमायत के वसीले से, खुदा की हमायत से आप खुदा की अजीम बरकतों का जो है वो एक्सपीरियंस करता है, जिसमें मैंने शुरू में बताया आप खुदा के फजल, खुदा की मुहाफ़ज़त को अपनी जिंदगियों के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आमीन। अब देखिए कि बाइबल मुकद्दस बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बयान करती है कि जिनको खुदा की हमायत हासिल हुई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या हुआ है? खुदा की हमायत हासिल हुई है, खुदा का फजल उनकी जिंदगियों के ऊपर जब वो हुआ है। और आप इन बातों को जब समझेंगे तो ये समझिए कि ये बुनियादी चीजें हैं। इसके बाद जब आप आइंदा सरमन्स को सुनेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके के साथ खुदा की बातों को जान जाएंगे। आमीन। आपको मालूम होगा कि आप के पास ही बरकतें हैं और आपको तो इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए, इसको अनाउंस करना चाहिए, इसको बयान करना चाहिए, इसका जिक्र करना चाहिए। और जब आप इन बातों का जिक्र करना शुरू करेंगे तो यकीन जानिए आपकी जिंदगियों के अंदर पीस आएगा, शलोम आएगा। क्यों जिंदगियों के अंदर जो शलोम नहीं है? क्योंकि हमने प्रोस्पेरिटी के एंगल को जब वो और तरीके से जानना शुरू कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि अगर मेरे पास रुपया पैसा है, गाड़ी बंगला दिगर अशिया है तो मैं प्रोस्पर हूं। बेशक ये भी इसी में इंक्लूड है, मैं इसके बारे में भी जिक्र करूंगा आइंदा कि ये सब चीजें मौजूद हैं। लेकिन ये खुशहाली इन तमाम चीजों से भी कहीं ज्यादा जब ऊंची है और जो है जबरदस्त है। इसमें कंप्लीटनेस है, इसमें साउंडनेस है, इसमें पीस है, इसमें वेलफेयर पाई जाती है। अगर इन चीजों से चीजें नहीं हमारी जिंदगियों के अंदर तो हमें जो है खुदा की हमायत की तरफ जो है वो रजू करना होगा, हमें खुदा के फजल की तरफ क्या करना होगा? रजू करना होगा। और जब हम इन चीजों की तरफ रजू करेंगे तो फिर क्या होगा? ठीक, तो आपकी जिंदगी के अंदर जो है कंप्लीटनेस आना शुरू हो जाएगी, आप परफेक्शन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, आप साउंड शख्स होंगे। ऐसे नहीं जो है वो किसी एक बात से जो है वो गिर गए या किसी एक मुश्किल से आई और फिर क्या हुआ? हमारा साउंड क्या हो गया? साउंड लेस हो गए। ठीक है, हमें क्या है? साउंडनेस हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए।
मजबूती, पायदारी हमारी जिंदगियों के अंदर होनी चाहिए है। कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत भी आ जाए, कोई खुशहाली जो है वो नहीं गिरती है। आमीन। फेवर जो है ये जो है गॉड्स लविंग काइंडनेस है, ये उसकी ये जो है खुदा की बड़ी प्यारी मोहब्बत से भरी हुई मेहरबानी है जो वो अपने लोगों को जो है वो फराहम करता है। चुनांचे मैं ये चाहता हूं कि कलीसिया में हम में से हर एक शख्स प्रॉस्पर नजर आए। ठीक है, क्या नजर आए? प्रॉस्पर, खुशहाल नजर आए, बाबरकत नजर आए, क्योंकि हमारा खुदा भी यही चाहता है कि वो अपना फजल दे, हमें बाबरकत बनाए, हमें बरकतों से मामूर करे। आमीन। आप जानते हैं कि यूसुफ के बारे में कौन नहीं जानता? यूसुफ को खुदा की हमायत हासिल थी। यूसुफ खुदा के फजल का तजर्बा रखता था, और आप ये जानते हैं कि वो किस तौर पर कैद से महल की तरफ चला गया। आमीन। वो प्रिजन से कहां चला गया? वो पैलेस तक चला गया। ये सब चीजें उसको कैसे हासिल हो गई? ये किस तौर पर जो है ये उसे हमायत मिली है, और उसे जो है वो अजीब हमायत हासिल थी। वो कैसे महल तक चला गया? आप हैरान होंगे, एक शख्स जो है वो कैसे गुलामी में गया, और फिर जो कैसे पोतीफर के घर के अंदर गया, और वहां पर उसे हमायत हासिल हुई, और फिर जो है उस पर इल्जाम, बेशक उसके ऊपर इल्जाम लगा, लेकिन इसके बावजूद जब वो कैद खाने में डाल दिया गया, और कैद खाना में भी उसे क्या हुई? खुदा की हमायत उसके ऊपर हुई, उसको खुदा की हमायत हासिल हुई, उस पर खुदा का फजल हुआ। आमीन। और फिर जो है किस तौर पर उसे बड़ी हमायत हासिल हुई कि उस शख्स को जो बेड़ियों में बंधा हुआ है, जिसको जंजीरों में बांधा हुआ है, उसको अजीब हमायत हासिल हुई कि उसे जो है कैद खाने से निकाल कर जो है महल के अंदर खड़ा कर दिया। आमीन। और ये है हमायत। खुदा ऐसे जो है इस तौर पर हमायत करता है कि कहां कहां से गुजार कर जो है फिर भी जिन जिन जगहों के ऊपर भी हो जो है वो लोग पहुंचते हैं, उनको बराबर खुदा की हमायत बराबर हासिल होती रहती है। वो अपने घर में था तो उसके बाप की तरफ से उसे हमायत मिल रही थी। उसको जो है वो बेच दिया गया, और उसको जो है एक पोतीफर के घर के अंदर जो है वो चला गया, वहां पर उसे हमायत मिल रही थी। कैद खाना में चला गया, दरोगा उसकी हमायत कर रहा है जो है। फिर जो है वो वहां से निकाला तो फिरौन ने जो है फिरौन के महल में पहुंचा, वहां पर उसे खुदा की हमायत हासिल हुई है। अजीज भाइयों, ये फेवर है जो खुदा अपने लोगों को फराहम करता है, और इसी को खुशहाली कहते हैं। खुदा की फेवर को जो है, खुदा की जो है वो ग्रेस को हम क्या कहते हैं? ये प्रॉस्पेरिटी के माने में है, ये शलोम है, ये अमन है, ये इत्मीनान है, ये तसल्ली है, ये सुलह है। आमीन। ये कंप्लीटनेस है, ये साउंडनेस है, ये वेलफेयर है, ये पीस है जो हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा या वो पैदा करता है। और अगर हम अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसी हमायत हासिल करना चाहते हैं तो तैयार हो जाएं। खुदा ऐसा करने के लिए तैयार है। खुदा इसी तरह से हमारे लिए भी करेगा। खुदा इसी तरह जैसे यूसुफ के साथ की है, खुदा इसी तरह उसके साथ करेगा। वो एक दिन में, गौर से सुनिए, वो एक दिन में सारे हालात को बदल कर रख देगा। कभी आपने क्लिक सुना है? क्लिक, टच, आप टच करेंगे, जैसे मोबाइल में टच करते हैं, जब आप क्लिक करते हैं जो है फौरन लम्हों में खुदा क्या करता है? वो हालात को यकसर क्या कर देता है? वो बदल देने की कुव्वत रखता है। और ये उस वक्त हो सकता है, ये इंस्टेंटली काम जब वो शुरू हो जाता है, वो इस तौर पर जो है वो अपने जब वो एंजल्स को भेजता है, और वो जो है सब चीजों को जो है वो तरतीब में, हर चीज को तरतीब में ले आता है। उसको जो है वो फेवर मिलना शुरू हो जाती है। जब तक हमें खुदा की फेवर हासिल ना हो, तब तक जो है हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम अपनी जिंदगियों के अंदर जो है ये सब चीजें देखना चाहते हैं कि
किसी भी जगह के ऊपर क्यों नहीं है, किसी तरह के हालात के अंदर क्यों नहीं है, किसी भी कठिन हालात के अंदर क्यों नहीं है, और किसी भी जगह के ऊपर क्यों नहीं है, आप देखते हैं कि वो हालात मेरे लिए नहीं बदल रहे हैं, देन क्या करें? आस्क द फेवर। जब आपके पास यह खुदा की फेवर मिलेगी, आपको खुदा की फेवर हासिल होगी, तो इंस्टेंटली फौरन जो है, देखते ही देखते आपकी जिंदगी के अंदर क्या होंगे? हालात बदलना शुरू होंगे। जो है जिंदगियों के अंदर जो है वो तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। बीमार हैं तो शिफा पाना शुरू कर जाएंगे, जो है बदहाल है तो सरफराज होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। एक और शख्स है जिसका नाम अय्यूब है। इसे ये वो शख्स है जिसे खुदा की मुकम्मल हमायत हासिल थी। आमीन। जो बाबरकत शख्स था, वो खुदा की मुकम्मल हमायत और खुदा की मुकम्मल बरकतों को वो क्या करता था? वो एंजॉय कर रहा था। और वो उसके पास जो है हर तरह की जो है वो बरकत थी। उसके पास जिस्मानी बरकत थी, उसके पास रूहानी बरकत थी। वो कामिल था, वो रास्तबाज था, वो बदी से दूर रहता था और वो खुदा से डरता था। ये उसकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग थी। इसके साथ जो है उसके पास जिस्मानी बरकतें थी, उसके पास भेड़ें थी, उसके पास ऊंट थे, उसके पास गलियां थी, उसके पास नौकर चाकर थे, उसके पास बेटे बेटियां थी, उसके पास जो है बहुत कुछ था। उसके वो ऐसा कि अहले मशरक में उस जैसा शख्स नहीं था। ये कैसे हुआ? ये क्यों कर हुआ? क्योंकि शैतान भी कहता है तूने उसके चौगिर्द क्या किया हुआ है? आप उसके गिर्द फसील बनाई हुई है, उसके गिर्द बाढ़ लगाई हुई है। ये है खुदा की खुशहाली, ये है खुदा की फेवर, ये है खुदा का ग्रेस जो वो अपने लोगों को देता है, जो उसे डरते हैं, जो बदी से दूर रहते हैं, जो कामिल हैं, जो रास्तबाज हैं। अजीज भाइयों, उन सबको ये फेवर हासिल हो सकती है। उन सबको वो जो है वो अपना ग्रेस दे सकता है, अपनी हमायत दे सकता है, और ये इंस्टेंटली हो सकता है। अगर इंस्टेंटली एक ही दिन के अंदर जो है वो खुदा ने थोड़ी देर के लिए अपनी फेवर उससे बाज रखी, तो देखते ही देखते क्या हुआ है? देखते ही देखते सब कुछ चटपट जो है सब कुछ उसका खत्म हो गया। तो अगर वो चटपट खत्म कर सकता है तो चटपट वापस लेने की कुदरत रखता है। आमीन। हालेलुया। अय्यूब 10:12 में लिखा है कि तूने मेरी जान बख्शी और मुझ पर करम किया, और तेरी निगहबानी ने मेरी रूह सलामत रखी। आमीन। ये उसकी बख्शिश है, ये उसका इकरार है कि उसने उसको जिंदगी दी है, उसने उसकी निगहबानी की है, उसकी जान बख्शी है। ये उसकी बख्शिश है। उसने इसका इकरार किया है कि तेरी हमायत मुझे हासिल है, तेरा ग्रेस मुझे हासिल है, मेरी रूह सलामत है, मेरी जान को तूने बख्शा है, मुझ पर तेरा करम है। आमीन। ये हमायत खुदा अपने लोगों को बख्शता है, अपने लोगों को अजीब तौर पर हमायत देता है। आमीन। ये खुदा की तरफ से ये गिफ्ट है जो वो अपने लोगों को बख्शता है। ग्रेस इज अ गिफ्ट या फ्री गिफ्ट है। आमीन। ये क्या है? ये फ्री गिफ्ट है। ये वो बाय वन गेट वन नहीं है, याद रखिए, बाय वन गेट वन नहीं है, ये फ्री गिफ्ट है। और इसमें कुछ भी नहीं लगता, इसमें सिर्फ ये लगता है कि उसकी कुर्बत हासिल की जाए। आमीन। ये नहीं कि बस जो है रोजाना को 10-15 गीत गा लिए जाए, दुआएं उठा ली जाए, ये काफी नहीं है। वो चाहता है कि इससे भी कहीं ज्यादा आप उसके नजदीक आए, उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, उससे बातचीत करें। ठीक है। वो हमारी जिंदगी से वाकिफ है। हमने उसको जो है जरूरत के लिए रखा हुआ है, हमने उसे रुपये पैसे के लिए रखा है, हमने उसे कारोबार के लिए रखा हुआ है, हमने उसे गाड़ी बंगले के लिए रखा हुआ है, हमने दुनिया की चीजों के लिए से रखा है। हमारे बच्चा नहीं होता, हमने उसके लिए रखा है। हमने जो शादी नहीं होती, हमने उसके लिए उसे यह रखा है। खुदावन मेरी शादी नहीं हो रही, ऐ खुदावन खुदा मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, तू यहोवा यरी है। हमने सिर्फ उसको यहां तक रखा है, कभी ये नहीं कहा कि तू मेरा बाप भी है और मैं तेरा बेटा भी हूं। हमने कभी इस तौर पर अपने रिलेशन को वो डेवलप नहीं किया है। हम गैर ज़बानें बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये नहीं कहते कि भी हम जुबानों से भरकर जो है उसके साथ रिलेशन के अंदर आए,
जबानों के ऊपर नहीं, रिलेशन के ऊपर आए। ये नहीं, मैं मना नहीं करता, जो है रोजाना कीजिए, मैं बहुत करता हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन अजीज बहनों भाइयों, यह रिलेशन के अंदर आइए। जब आप रिलेशनशिप के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है खुदावन की फेवर मिलना शुरू होगी, आपको खुदा की हमायत हासिल होना शुरू होगी, खुदा का फजल हमारी जिंदगियों के ऊपर कसरत से होना शुरू होगा। आप देखते चले जाएंगे, रोजाना देखेंगे, सिर्फ आप नहीं देखेंगे बल्कि जो है आपके इर्द गिर्द के लोग देखेंगे कि इसको क्या हुआ है, ये बदल रहा है, इसको कुछ जो है कुछ हमायत हासिल है। वो जो है दाएं बाएं देखेंगे, इसको किसकी हमायत है, वो इधर उधर देखेंगे, इसको किसी ना किसी की जो हमायत हासिल है, लेकिन उनको क्या मालूम है कि वो ऊपर अपनी आंख उठा के देखें, उसको उनकी हमायत है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया देखेगी, ये दुनिया देखेगी कि खुदा किस तरह पर प्रोस्पर करता है, ये दुनिया देखेगी और ये दुनिया जानेगी कि भी ये किस तरह पर तब्दीली वकू में आ रही है, किस तरह पर चेंजिंग वकू में आ रही है। और वो देखते ही रह जाएंगे और उनको ये नजर नहीं आएगा कि जो है आसमानी खुदा उनका हमायती है, आसमानी खुदावंद जो है वो उनकी जो है उनको जो है अपना फजल जो है देने से बाज नहीं आता है, अपनी शफकत को उनसे बाज नहीं रखता है। आमीन। अजीज बहनों भाइयों, गौर से सुनिए मेरी बात, बड़े गौर से सुनिए। हमें किस्मत की जरूरत नहीं है, हमें जो है लक की जरूरत नहीं है। बाज़ दफा हम ये कहते हैं कि अगर मेरी लक हुई तो मुझे ये मिल जाएगा, अगर मुझे मेरी लक हुई तो मैं जो है जरूर बजरूर ये जॉब, ये कारोबार, ये जो है ये चीजें हासिल कर लूंगा। अगर जो है मेरी लक, मेरी किस्मत हुआ तो मेरे मुकद्दर में, मेरी किस्मत में हुआ तो मुझे मिल जाएगा। हमें किस्मत की जरूरत नहीं है, हमें उसकी फेवर की जरूरत है, हमें उसके ग्रेस की जरूरत है। हालेलुया। हमें उसकी बरकत और उसके ग्रेस की जरूरत है, उसकी हमायत की जरूरत है। मत अपनी जिंदगी को जो कोसिए, मत ये कहिए कि ये मेरी किस्मत में नहीं है। अजीज बहनों भाइयों, किस्मत नहीं, उसके ग्रेस की जरूरत है। आमीन। खुदा की बरकत और फजल ये इंतहाई पावरफुल है, इतनी पावरफुल चीजें हैं आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। आमीन। अगर ये किसी शख्स को मिलना शुरू हो जाए, वो शख्स जो है इस दुनिया का जबरदस्त शख्स है, बाबरकत शख्स है। आप खुशकिस्मत नहीं, आप बाबरकत शख्स हैं। हालेलुया। आई एम अ ब्लेस्ड वन। ठीक है, मैं क्या हूं? मैं ब्लेस्ड हूं। आप क्या हैं? आप बाबरकत हैं। कहिए, मैं बाबरकत हूं कि मैं खुशकिस्मत हूं। ये दुनिया की बातें हैं, ये दुनिया के ये है वो लैंग्वेज है, वो कह सकते हैं। और अक्सर का ऐसा कहा जाता है, बैक हमें किस्मत की नहीं, हमें उसकी फेवर की, उसकी बरकत की, उसके ग्रेस की जरूरत है। इसकी तरफ तवज्जो कीजिए कि ये मत कहिए कि अगर ये ऐसा हुआ कि खुदावन तू मेरी हमायत करेगा तो यकीनन मैं ये कर पाऊंगा। अगर तेरी हमायत मुझे हासिल हुई तो यकीनन मैं जो है अपनी इस बुलंदी तक पहुंच जाऊंगा, मैं इस जगह तक पहुंच जाऊंगा, मैं ग्रेस को हासिल करूंगा, मैं हमायत को हासिल कर पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 6:33 में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी ढूंढो, कि उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आप अपनी जिंदगी के अंदर उसकी प्रोटेक्शन को हासिल करना चाहते हैं। जब अय्यूब 29:17 के अंदर लिखा है, मैं नाराज के जबड़ों को तोड़ डालता और उसके दांतों से शिकार छुड़ा लेता हूं। यह उसकी हमायत के वसीले से है। अगर कोई शख्स जो है नाराज के जबड़ों के अंदर जब वो फंसा हुआ है, अगर कोई शख्स जो है दांतों का शिकार हो चुका है, किसी ने उसको जो है अपने दांतों के अंदर और किसी ने उसके अपने जबड़ों का शिकार कर लिया है और उसे नोच रहा है, उसे पीस रहा है। अजीज बहनों भाइयों, अगर खुदा की जो है हमायत हमें हासिल हो जाए, अगर उसकी बरकत, उसकी खुशहाली हमें हासिल हो जाए तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है। वो नाराज के जबड़ों को तोड़ डालता है और फिर उसके दांतों से शिकार को छुड़ा लेता है। आमीन। खुदावन कहता है कि तू पैसे मांगता है, मैं तुझे फजल देता हूं। आमीन। ये बात उसने जो है वो
पालूस रसूल को समझाई, उसने कहा मैंने 3 बार खुदा से इल्तमास किया कि ये मेरे साथ ना हो, क्योंकि शैतान का कासद आकर जब वो मुझे कांटा चिबोता था, लेकिन खुदा ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए क्या है, वो काफी है, मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। क्या तुझे जो है ये कांटा दूर हो जाए या फजल चाहिए? उसने कहा कि नहीं, मुझे जो है तेरा फजल चाहिए, क्योंकि ताकि तेरी कुदरत मुझ पर छाई रहे। अगर आपको हमायत हासिल है, आप तंगी के अंदर, आप एहतियाज के अंदर, आप जरूरत के अंदर भी जो है खुदा के या कुदरत का जो है वो क्या कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको खुदा के जो है एक वक्त में आप जो है हील हो जाते हैं, अगर आपको कुछ मिल भी जाए, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपकी जो है वो सेहत खराब हो सकती है, लेकिन याद रखिए अगर उसका फजल हमारी जिंदगियों के अंदर है तो उसकी कुदरत हम पर छाई रहेगी, और यूं आप जो है अजीब जो एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी के अंदर कर पाएंगे। आमीन। वो आपको जो है वो कंप्लीट पीस देना चाहता है, मुकम्मल इत्मीनान से आपको भर देना चाहता है, और ये कंप्लीटनेस, साउंडनेस जो है, दिस इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। ये है प्रॉस्पेरिटी, ये है खुशहाली कि आप कामलियत की तरफ आए, आप साउंडनेस की तरफ आए, आप जो है वो जो है पायदारी की तरफ जो है वो रुजू करें। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे ये फेवर अता कर। खुदावंद जो है अपने लोगों के लिए ऐसा करता है। ये उन सब के लिए है जो उसके बेटे हैं, ये उन सब के लिए ये गिफ्ट है जो उसके फर्जंद हैं, ये उन सब के लिए है जो उसके अहद में शामिल हैं, जो उसके अहद में शामिल हैं और जो उसके बेटे और बेटियां हैं। हम में से कौन है जो उसके बेटे और बेटियां हैं? हम में से कौन है जो उसके फजल और उसके अहद में शामिल हैं? हालेलुया। खुदा आप लोगों को बरकत देता है और उनको बचाता है, उसी तरह जैसे उसने इस्राएल के साथ किया। हिजकिय्याह उसका जो है वो 16वां बाब और पहली आयत से आप 14वीं आयत तक पढ़ें, आपको मालूम होगा कि खुदा ने उसकी कैसे हमायत की है, किस तौर पर जो है उसके ऊपर नजर की। बाइबल ये फरमाती है कि जब जो है खुदा ने इस्राएल को पहली दफा देखा, गौर से सुनिए, जब पहली दफा उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी, जब आप यह हिजकिय्याह की किताब उसके 16वें बाब में पढ़ें, खुदा ने उसे याद दिलाया, क्योंकि ये बात जो है वो उससे फिर गए थे हिजकिय्याह की किताब में। जब मिले इन्होंने खुदा को तर्क कर दिया, खुदा ने याद दिलाया कि याद करना कि मैंने तेरी कैसे हमायत की। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा यरूशलेम से यूं फरमाता है कि तेरी वलादत और तेरी पैदाइश कनान की सरजमीन में है, सरजमीन की है। तेरा बाप अमूरी था, तेरी माँ हित्ती थी, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाक काटी ना गई, ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला, और ना तुझ पर नमक मला गया, और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। किसी की आंख ने तुझ पर रहम ना किया कि तेरे लिए यह काम करे और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तू अपनी विलादत के रोज अब बाहर मैदान में फेंकी गई, क्योंकि तुझसे नफरत रखते थे। तब मैंने तुझ पर गुजर किया, तब मैंने क्या किया? गुजर किया, और तुझे तेरे ही लहू में लौटती देखा, और मैंने तुझे जब तू अपने खून में आगाशता थी कहा कि जीती रहा है। हाँ, मैंने तुझे खून आलूदा से कहा जीती रहा। मैंने तुझे चमन के शगुफों की मानद 1000 चंद बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल फरमाती है मैंने तुझे जरदोस लिबास से मुलब्बस किया। 9वीं आयत में लिखा है फिर मैंने तुझे पानी से गुस्ल दिया, तेरा खून बिल्कुल धो डाला, तुझ पर इतर मला, और मैंने तुझे जरदोस लिबास से मुलब्बस किया, तखस की खाल की जूती पहनाई, नफीस कतान से तेरा कमरबंद बनाया, तुझे सरासर रेशम से मुलब्बस किया। मैंने तुझे जेवर से आरास्ता किया, तेरे हाथों में कंगन पहनाए, तेरे गले में तोक डाला, और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई, और एक खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा, और तूने सोने चांदी से आरास्ता हुई, और तेरी पोशाक कतानी और रेशमी चिकनदोजी की थी, और तू मैदा और शहद और चकनाई खाती थी, और तू नहायत खूबसूरत और इकबाल मंद मलका हो गई। कि खुदा फरमाता है कि तूने
मेरे उस जला से जो मैंने तुझे बख्शा कामल हो गई थी। अक़वाम आलम में तेरी खूबसूरत की शोहरत फैल गई है। हालेलुया। यह है खुदा की हमायत जो यरूशलेम को हासिल हुई, जो इस्राएल कौम को हासिल हुई, कि वो किस तौर पर उनकी हालत क्या थी। अजीज बहन भाइयों, हमायत ये है कि कहां से जो है उसकी हालत क्या थी। उसे फेंका गया था, उसको जो है रद्द किया गया था, उससे नफरत की गई थी। बाइबल फरमाती है मैंने गुजर किया और तुझे अपनी जो है गोद में ले लिया। यह है खुदा इसलिए इसराइल से मोहब्बत रखता है, यरूशलेम से मोहब्बत रखता है, क्योंकि उसने इससे प्यार किया है, इसे संवारा है, इसे खूबसूरत किया है। आइन बाइन उसने हमारे साथ ऐसा किया है। आमीन। और उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से क्या किया है, हमें धो डाला है। हम भी अपने ही गुनाहों में लथपथ थे, अपने ही जो है गुनाहों की कीच में फंसे हुए थे, उसकी दलदल के अंदर धंसे हुए थे, और कोई नहीं था कि हम पर नजर करे। बाइबल ये फरमाती है जब बेदीन ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। जब अपने गुनाहों में मुर्दा ही थे, जो बावजूद दिल से दुश्मन थे उसके, और के रद्द किए हुए थे, गिरे हुए थे, पस से मौत में थे, पाताल में थे, जहन्नम में थे, कोई गुजर नहीं करने वाला था, कोई उम्मीद, कोई जो है वो कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्राइस्ट ने क्या किया है, अपना दामन हमारी तरफ फैला दिया, अपने हाथ खींच दिए सली पर कि आ मैं तुझे लेने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे अपने बाजुओं में लेने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, हमें अपने बाजुओं के अंदर ले लिया और अपने खून से, जिस तौर पर बनी इस्राएल को धोया, उसने अपने खून से हमें धो दिया। यह है फेवर जो खुदा अपने लोगों को देना चाहता है। शेबाइन जो है इसराइलियों को जैसे उसने फेवर दी है, इसी तरह जो उसके अहद में शामिल होते हैं, इसी तरह जो उसके कदमों में जाते हैं, और उसी तरह जो मसीह की सलीब के ऊपर ईमान रखते हैं, खुशहाली उनको हासिल होती है, खुदा की फेवर उनको हासिल होती है, बरकत और खुशहाली, मुहाफ़ज़त और इत्मीनान उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा उंडेल लेता है। खुदा उनकी ख्वाहिश है मेरे अज़ीज़ भाइयों, खुदा उनकी ख्वाहिश है कि क्या हो, कि हम बाबरकत कहलाए और अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करें। आमीन। क्या करें, अच्छी चीजों को क्या करें अपनी जिंदगी के अंदर, ये खुदावन की ख्वाहिश है। तो फिर क्या करना चाहिए, अपनी बरकत को डिक्लेयर करें। खुदावन ने हमारे लिए जिंदगी और फजल का वायदा किया है। कहिए, खुदावन तूने मुझे जिंदगी और फजल दिया है। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने जिंदगी दी, बल्कि कसरत से दी। मेरी जिंदगी पर तेरी हमायत है, मैं इसके लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। मुझे नए तौर पर अपने फजल और हमायत से भर दे, जिसके लिए तूने मुझे मखसूस कर दिया है, जिसके लिए तूने मुझे बनाए आलम से पेशतर चुन लिया है। आमीन। मौत और जिंदगी किसके हाथ में है, बोलिए, जुबान के हाथ। ऐसे जुबान के इख्तियार में ना, बाइबल फरमाती मौत और जिंदगी इसके इख्तियार में है। हम किसको चूज करेंगे, किसका इंतखाब करेंगे, जो कुछ बोलेंगे वही कुछ होगा। बाइबल मुकद्दस में फरमाती है बरकत चाहो क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए क्या है, बुलाए गए हो। अनाउंस द ब्लेसिंग, आप बरकत को डिक्लेयर किया करें, बरकत को जो है वो अनाउंस करें, उसका जिक्र करें। आमीन। ब्लेसिंग और फेवर को अपनी जिंदगियों के अंदर डिक्लेयर करें आज, जब आप उसके कदमों में झुकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि मैं उन हवालों का जिक्र करूं जहां पर खुदावन उस बेस के ऊपर खुदावन से आप या खुदा की बरकत को मांग सकते हैं, उसकी फेवर को हासिल कर सकते हैं। आमीन। पैदाइश 39:6 में लिखा है, जिस पर यूसुफ पोतीफर के घर में खुदा की हमायत से हासिल की। आए खुदावन मुझे तेरी हमायत हासिल हो उसी तरह। आमीन। पैदाइश 39:6 में आए खुदावन जिस तौर पर यूसुफ को दरोगा की
दरोगा की हमायत हासिल हुई, ऐ खुदावन मुझे भी तेरी हमायत हासिल हो। आमीन। और जब खरूज 12:36 में पढ़ते हैं आप, वहां पर क्या लिखा है, जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो मिस्री सारे जो उनके अगेंस्ट थे, खुदा ने क्या किया है, उनको उनके सामने इज्जत बख्शी। ऐ खुदावन मुझे भी दुनिया के सामने इज्जत बख्श दे, मुझे तेरी इस हमायत की जरूरत है। आमीन। इस्तिस्ना 33:23 में लिखा है कि ऐ खुदावन जिस पर तूने नफ्ताली को जहां मुतमईन किया है उसको तूने बरकत दी, जिस पर तूने आशर को बरकत दी है, ऐ खुदावन मुझे तेरी हमायत हासिल हो। और जब आप सैमुअल की बरकत उसकी हमायत का जिक्र पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, ऐ खुदावन जब आप दुआ करेंगे भी ये इन चीजों का डिक्लेयर करें, ऐ खुदावन, पहला सैमुअल 2 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि सैमुअल खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत हासिल करता रहा, ऐ खुदावन मैं तेरी इस हमायत को अपनी जिंदगी के लिए मांग लेता हूं। आमीन। और जब दाऊद पहली दफा साउल के पास गया तो बाइबल फरमाती है कि दाऊद खुद या साउल के सामने मंजूर नजर हो गया, ऐ खुदावन मुझे भी मंजूर नजर बना दे। और जिस तौर पर आसर जब आप 2:17 में पढ़ते हैं, बाइबल फरमाती है कि आसर जो है वो जब बादशाह के सामने मंजूर नजर हुई, ऐ खुदावन मुझे भी मंजूर नजर कर, मुझे तेरी हमायत की जरूरत है। आमीन। और ज़बूर 5:12 में लिखा है, मुझे बरकत दे और सिपर की तरह क्या कर दे, ढांक ले। आप खुदावन की हमायत यूं मांगना शुरू करें, ऐ खुदावन मुझे सिपर की तरह ढांक ले, मुझे तेरी हमायत की जरूरत है। आप कलाम के बुनियाद के ऊपर उसकी हमायत और उसकी प्रेयर को जब उठाया करें। ज़बूर 23:7 में लिखा है, खुदावन तूने अपने करम से मेरे पहाड़ को कायम रखा था, मैं तेरी हमायत को आज भी अपनी जिंदगी के लिए मांगता हूं। मेरे जो है अपने करम से मेरे पहाड़ को क्या कर, कायम रख। और जब आप इस तौर पर खुदावंद के हुजूर में हमायत का फेवर डेकोरेशन करेंगे या उसकी ग्रेस को, उसकी ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी के अंदर या कलाम की बुनियाद के ऊपर मांगना शुरू करेंगे, तो देखिएगा कि किस तौर पर आपकी जिंदगी जो है आपके बोलने के जरिए से आपकी जिंदगी के अंदर उसकी हमायत आपको हासिल होगी। ज़बूर 41:11 के अंदर लिखा है, इसलिए मैं जान गया कि तुम मुझसे खुश है कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। ऐ खुदावन मैं तेरी हमायत चाहता हूं कि मेरा दुश्मन मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो फतह ना पा सके। प्रेज द लॉर्ड। तेरा फजल जो है वो जब आप ज़बूर 85 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो असुर तेरा फजल से असीरी मकूफ हो जाती है। आप जब इस तौर पर अपने खुदावंद के हुजूर में बैठ कर जो है अनाउंस करना शुरू करेंगे, डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, बयान करना शुरू करेंगे, तो फिर क्या होगा, खुदावंद की बरकत आपकी जिंदगी के अंदर आएगी। आप जब खुदावंद के हुजूर में कहेंगे क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होगा। आमीन। तेरे करम से हमारा सींग क्या होगा, बुलंद होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी फेवर मुझे इस तौर पर हो। ज़बूर 102:13 में लिखा है, तू उठेगा और सयून पर रहम करेगा क्योंकि इस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, इसका मुय्यन वक्त आ गया है। ऐ खुदावंद मैं तेरी हमायत चाहता हूं। हालेलुया। हाँ, इसका मुय्यन वक्त आ गया है। दिस इज द राइट टाइम लॉर्ड, दिस इज द राइट टाइम लॉर्ड। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मेरी हमायत कर, तू मुझे फेवर दे, तू मुझे बरकत दे। दिस इज द राइट टाइम लॉर्ड। आप देखेंगे कि आप अपनी जिंदगी के अंदर इसका एक्सपीरियंस करना शुरू होगा। प्रेज द लॉर्ड। इंसाल 16:15 के अंदर लिखा है, बादशाह के चेहरे के नूर में जिंदगी है और उसकी नजरें अनायत आखिरी बरसात के बादल की मानंद है। आए मेरे खुदावन तेरी हमायत मुझे हासिल हो कि आखिरी बरसात के बादल की मानंद तेरी नजरें अनायत मुझ पर हो जाए और तेरी बारिश शबनम की तरह मेरे ऊपर बरसती रहे। इंसाल 19:12 के अंदर भी लिखा है, उसकी नजरें अनायत घास पर शबनम की मानंद है। माय डियर,
जब आप खुदा के कलाम की बुनियादों के ऊपर जो है खुदा उनके हुजूर में खड़े हो जाएंगे और उसकी हमायत का ऐलान करेंगे, उसकी हिमायत का जिक्र करेंगे, यकीन जानिए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हकीकी मायनों के अंदर खुदा की बरकत का यह वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाइए और खुदा के हुजूर में उसकी हमायत को मांगना शुरू करें। उससे कहे क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे करम से हमारा सिंह बुलंद होगा। तू उठेगा और सैय्यून पर रहम करेगा क्योंकि इस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, इसका मुअय्यन वक्त आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी नजर इनायत आखिरी बरसात के बादल की मानंद है। उसकी नजर इनायत घास पर शबनम की मानंद है। हालेलुया। अपनी अजीब शफकत दिखा कहिए उससे, तू हजारों पर शफकत करता है। यिर्मयाह 32:10 में लिखा है, तू हजारों पर शफकत करता है। तू खुदा उनमें मुझे भी शामिल कर दे। ये दुआ करना शुरू करें, तू अपनी अजीब शफकत मुझे दिखा और आप अपनी जिंदगियों के अंदर उसकी फेवर को, उसके फजल को, उसकी ब्लेसिंग को अपनी जिंदगियों में लेने के लिए तैयार हो जाएं। खुदा हमें पे पैसे से कहीं ज्यादा आपको कंप्लीटनेस के अंदर लेना चाहता है, आपको साउंडनेस अता करना चाहता है, आपको शलोम देना चाहता है, आपको पीस देना चाहता है। मुकम्मल पीस आपके रूह बदन जान को जो है वो घेर लेगा। आइए खुदावन से मांगना शुरू करें, खुदावन की हमायत को हासिल करना शुरू करें। जिक्र कीजिए कि मैं एकदम खुदा वे मैदान में पड़ा हुआ था, मेरा कोई वाली वारिस नहीं था, मैं बेयारो मददगार था। तू ही खुदावन है। याद कर कि तेरी सलीबी मौत से मैंने एकदम निजात पाई है। मैंने ये इकरार किया है और आज भी ये इकरार करता हूं, मेरी निजात, मेरा छुटकारा, मेरी बरकत, मेरी एकदम खुदा खुशी, मेरा इत्मीनान, मेरी तसल्ली, मेरी दिलकशी, मेरा लुत्फ, मेरी मिठास, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत एकदम खुदा तेरे ही सबब से है। मैं पुकारता हूं तेरे हुजूर में। आइए अपने हाथों को उसकी तरफ बुलंद करें और उसके हुजूर में उसकी हमायत अपनी जिंदगी के अंदर मांगना शुरू करें। आपको किस तौर पर उसकी हमायत चाहिए, खुदा आपको देने के लिए तैयार है। अगर यूसुफ के लिए उसकी हमायत है, अगर यूब के लिए उसकी हमायत है, अगर दाऊद के लिए उसकी हमायत है, हालेलुया, इसी तरह उसकी हमायत उसके लोगों के लिए है जिसने उसको कबूल किया है। आइए इसका जिक्र करना शुरू करें कि तू हमेशा मेरी हमायत करता है। अब भी मुझे तेरी हमायत की, तेरी फेवर की जरूरत है। मुझे एकदम तेरी फेवर चाहिए, मुझे इंसानी फेवर नहीं बल्कि एकदम तेरी फेवर चाहिए है। अपने एंजल्स को भेज, अपने पाक एंजल्स को दे ताकि वो एकदम खुदा चारों तरफ से मुझे घेर ले और इब्लीस की सारी कुव्वतें नेस्त हों यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि खुदा आपको अपनी हमायत से जो है वो भर दे। अपने हाथ खुदावन की तरफ बुलंद करे, अपने दिल के ऊपर हाथ रखे। ऐ मेरे खुदावन यीशु, मैं तेरे लोगों के लिए जो तेरे सामने हैं, जो एकदम खुदा ईमान रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तेरी हमायत से ही एकदम जिंदगी, निजात, शिफा, सलामती है, सेहत है, खुशी है, खुदावन खुदा दिलकशी है, इत्मीनान है, कामलियत है, खुदावन पायदारी है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी जिंदगियों में एकदम तेरी फेवर चाहता हूं। यीशु मसीह के नाम से, रूहुल कुदस के वसीला से मैं इनके लिए तेरी फेवर मांगता हूं, मैं इनके लिए तेरा फजल मांगता हूं, मैं इनके लिए तेरा हाथ मांगता हूं। अभी इसी वक्त इनकी ब्लेसिंग्स एक्टिवेट हो, इनकी एकदम खुदा इनके लिए तेरी फेवर एक्टिवेट हो यीशु के नाम से। मेरे खुदा ऐ बाप, यीशु के नाम से एकदम तेरा फजल इनकी जिंदगी में एक्टिवेट हो और वो जो चीजें रुक गई हैं वो चलना शुरू हो, जो थम गई हैं यीशु के नाम से वो चलना शुरू हो। जहां पर एकदम सुकूत है वहां पर एकदम खुदा जो है वो तेजी आना शुरू हो यीशु मसीह के नाम से। जहां पर चीजें बंद हैं यीशु के नाम से वो खुल जाएं। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे लोगों के लिए, हर एक शख्स के लिए, हर एक भाई बहन बच्चे के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरी फेवर तेरे लोगों को हासिल होना शुरू हो, तेरी कसरत की बरकत को जो है वो तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। ऐ खुदा आप लोगों को बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। और सब कहें
आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी जिंदगियों में खुदा की फेवर को अजीब तरीके से देखेंगे, और ये आने वाले जो है सारे संडे से आप खुदावन की ब्लेसिंग को, खुदावन की प्रॉस्पेरिटी का एक्सपीरियंस करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि खुदा का कलाम कसरत से हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। खुदाई कुदूस रब्बुल फाज ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक जिंदा खुदावन, तेरा शुक्र और तेरे नाम की हम तेरे नाम की सताइश करते हुए तेरी पाक बारगाहों में झुके हैं। खुदा आज के मुकद्दस दिन के लिए, पाक दिन के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा लाते हैं। खुदावन यीशु तूने आज के दिन को बरकत दी है खुदावन खुदा, और खुदा जितने भी तेरी हजूरी में आज सर मौजूद हुए हैं, तेरे घर में आए हैं, और खुदा यकीनन तूने उन्हें अपनी बरकत से मालामाल किया है। इस बात के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा लाती हूँ। खुदा कदूस रब्बुल फाज तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के जिंदा पाक कलाम के लिए जो कि तूने हमें अता किया है, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। बख्शने की ये शरीयत की किताब हमारे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात हमें इसी का ध्यान रहे, उठते बैठते सोते जागते इसी की जुगाली करते रहें, क्योंकि खुदा इसके बगैर हम कुछ नहीं है। खुदा जिंदगी की रोटी इसी में है। खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ। यकीनन आज के कलाम के वसीला से तूने हमें हमारी जिंदगियों को सैर और सुदा किया है, हमें बरकत से नवाजा है। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे खादिम के लिए, जिसको तू रोज रोज अपने पापों की कुदरत के वसीला से इस्तेमाल करता है, उसे खुदा और ज्यादा हिकमत, दनाई और अपने पापों की समझ के साथ अपनी कलीसिया को साथ साथ लेके चलने का बड़ा फर्ज अता कर। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र अदा करती हूँ। पाक आसमानी खुदाई के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ। खुदा आज की तमाम हमद सना में तू तक नशीन हुआ, तेरा शुक्र हो। खुदा यीशु प्रिजाइडिंग करने वाली बहन के लिए तेरी लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ। खुदा तू उसको और ज्यादा अपने में गहरे में लेता चला जा, ताकि खुदा तुझ में मसरूर हो के खुदा तेरी खिदमत कर सके। पाक आसमानी तू ऐसा करने पे कादिर है। अब पाक आसमानी तमाम हदिया चंदा दायकी के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र गुजार आते हैं। जिन हाथों से ये निकला है उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग मांग लेते हैं। खुदा उन्हें आसमान के नीचे खोल के अपनी बरकत को नाजिल कर, उनके घरों में किसी चीज की कमी ना होने पाए, उनके खत्ते सदा भरे रहें, उनके हौज नई महफिल अंगेज रहें। अब आप आसमानी तेरा शुक्र हो गए शुरू से लेके आखिर तक तू हम सबों के साथ हुआ। अब आप आसमानी इस दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरी बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्श दे। आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हम सबके साथ और पूर्व के साथ God bless you.